thirdly is like basically for my products and services जो मैं मोबाइल लैपटॉप वाला लाइन के अंदर मैं अपना प्रेजेंट करना चाहता हूँ उसके लिए Okay, that's cool. 3 सेक्टर के लिए. So basically, the thing is, I'm just asking your aim and your target to like go if you are coming for learning for video editing. So the target is clear for the learning part. So that's why I'm asking, and it is very important because if I don't know about your target, so I'm not able to just giving the proper training about that thing. Understood. Right. So first of all, I'm just briefing myself Tarun Gupta. I'm taking care about the Premiere and the After Effects and all the multimedia courses as a trainer, working over there last 3 years. Right. My experience is like 10 to 12 years experience in a multimedia and VFX industry. Working as like a lot of Bollywood and Hollywood movies. I allowed 1.150 movies are already completed till now, and is still working with the line rated with the Bollywood movies. I was recently working in Jackie Shroff face movies. So these my experience, past experience, and I'm already connected with Tech Vidya, so providing the multimedia and the graphics trainings, and this is like for our improvement. I'll also just train the students, and it's my passion. Right. So Okay. initially, I'm just starting the from the video editing demo session. So first of all, I'm just sharing the screen with you. Yes. Okay. There is another participant also named Venus Devpriya. Yeah, Venus De Priya is like he's my assistant. She's my assistant, so don't worry. So he's just taking care. Okay, He's fine. just go through the demo Okay. session. That's it. Okay. So first of all, I'll just write down one word: the video editing. Right. So any idea what is video? I'm just splitting both of the words: video plus editing. Any idea what is video? The video is basically a collection of all the photographs in a movie, which is continuously uh, brought together, and it is shown very fast, which is seen in the form of video. That's good. That's good. Like if I'm just giving some frame, and this frame is in a sequence and show is in a multiple times in a regular in a sequence way, right? So it is called, if we call it as a video. And the editing parts, if I'm just manipulate all these videos, so it is a editing, and it will represent any concept. Because मैं अगर वीडियो की बात करूँ तो कोई भी वीडियो एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करती है. If you go through any kind of videos in YouTube, in your Facebook channel, in your any kind of channels, if you are go through, so every video will giving a concept. Without any concept, there is no videos over there. राइट इफ यू गो थ्रू इट एनी काइंड ऑफ वीडियो, कोई भी ऐसी वीडियो आपके पास नहीं होगी जिसमें कोई कॉन्सेप्ट ना हो. विदाउट एनी कॉन्सेप्ट कोई वीडियो आपने नहीं देखी होगी. सो इन अ वीडियो एडिटिंग एक मेन टारगेट यही रहता है कि लाइक एक कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट हो विद द हेल्प ऑफ वीडियो एडिटिंग. राइट. सो 2 टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग्स आर देयर. Means 2 ways to create a video editing. Okay. Right. One is a linear editing and second one is non-linear editing. Linear editing and non-linear editing. Non-linear. Right. So basically what is linear and what is non-linear. So मैं अगर आज से करीब बात करूं 10-15 साल पहले अगर मैं बात करूं तो एडिटिंग पहले भी होती थी. जब हमारे पास सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, हमारे पे इतना टेक्निकल वर्क नहीं था, तो एडिटिंग हम इससे पहले भी करते थे. सो दैट टाइम वी आर वर्किंग ऑन टेप्स. हम जो रील्स आपने सुना होगा, जो हम सीडी प्लेयर या कैसेट वगैरह में डालते थे, वो टेप्स में हमारा वर्क होता था. शूटिंग जो होती थी वो रोल्स पे होती थी, बड़े बड़े रोल्स होते थे, हम लोग नेगेटिव्स और वो सब. राइट. तो उन नेगेटिव्स को 1 बाय 1 प्ले किया जाता था, जिसकी मैंने बात करी, और उससे हमारी पिक्चराइजेशन क्रिएट होती थी या वीडियो क्रिएट होती थी. तो उसको मल्टीपल जो टेप्स होती थी, आपको पता ही है शूटिंग्स के अंदर मल्टीपल जगह पे शूट किया जाता है और उसको फिर जोड़ा जाता है, उसी को हम बेसिकली एडिटिंग. तो होता क्या था, उन टेप्स को मल्टीपल मॉनिटर्स में लगाया जाता था और मॉनिटर में लगा के उनको मैनुअली कट करते थे, या फिर टेक्निक उसको कुछ सॉफ्टवेयर वाइज या फिर सिस्टम वाइज को कट करके मैनुअली जोड़ते थे एंड फिर उसको एक प्रेजेंट करते थे एक सिंगल. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. दैट्स प्रोसेस लाइक इट्स अ ऑनलाइन एडिटिंग. मींस पहले के टाइम में हम इसको ऑनलाइन एडिटिंग बोल सकते हैं. रीजन क्योंकि इसके अंदर हमारा डेटा लॉस हो जाता था. इट मींस अगर मैंने किसी फुटेज पे काम किया, आपको पता होगा आपके घर में भी अगर सीडी प्लेयर या कुछ होगा, तो समटाइम्स मेरी सीडी खराब हो जाती थी या फिर उसमें टेप्स फट जाती कट जाती थी, तो उस टाइम उस वजह से हमारा डेटा लॉस हो जाता था. तो इस वजह से इसको लीनियर एडिटिंग प्रोसेस बोलते थे. इसमें हमारा डेटा लॉस होने की पूरे चांसेस रहते थे. राइट. तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते थे हम लीनियर एडिटिंग प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लीनियर एडिटिंग process. But now we are working on non-linear video editing. It means it's a offline editing. Why we are calling is a offline editing?
So इसमें क्या होता है, like if I'm just importing the data in my software, like we are working now, we are working on softwares, right? So that software, by you just need to import the footage and you are working on footage and multiple times, so there is no effect on the raw footage. मतलब मैं कितना भी उस पे काम कर लूं, मेरी raw footage पे कोई भी effect नहीं पड़ेगा. Okay. Right? तो it's a process of offline editing. Of why we are calling offline, because मेरी footage पे कोई impact नहीं पड़ रहा है. That's why we call it as offline editing. And इसको मैं कितना भी edit कर लूं, so it's a process. इस पूरे process को हम बोलते हैं non-linear editing process. So ये हमारा एक छोटा सा ब्रीफ रहता है वीडियो एडिटिंग का कि क्या होता है वीडियो एडिटिंग, राइट? सो नाउ आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग, लाइक आपको पता है इन अ मार्केट लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर देयर फॉर द वीडियो एडिटिंग. Yes. राइट. अगर मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेशनली इफ यू आर वर्किंग, सो नाउ इज प्रीमियर एंड Hello. Premier. Yeah, Premiere and FCP. It's for the professional software. It is the both softwares are very professional, which we are using in a lot of industries. Most of the industry we are definitely use these two softwares. Otherwise, in a market, like lot of n numbers of softwares in a market, you can use any kind of software. But these two software they are working as a professionally. Okay. Right. So Premiere is for Windows and FCP is for Mac. Okay. Okay, and if you are using a Windows machine, so you have to definitely use Premiere. And if you are working on Mac, so in a Mac, both of the softwares are working. Like FCP is only for Mac, and Premiere also you can use for the Premiere. I'm currently working on Windows, so I would go for Premiere, right? Right, and most of the persons have Windows machines over there in India. तो इसलिए Premiere use होता है. इसलिए most of the time we are working on Premiere. Otherwise, if like in Bollywood industry, in Hollywood industry, if you are working on movies, if you are working on a news channel, so everyone using for Mac and working on FCP. So because इसका भी reasons है, ऐसा नहीं है कि Premiere क्यों नहीं यूज करते, because data like क्या होता है, sometimes Premiere में Windows machine में वायरस और इस टाइप की चीजें होती हैं तो डेटा लॉस कर देती है. तो दैट्स वाई फॉर द सिक्योरिटी पर्पस एंड सेफ पर्पस वो लोग FCP प्रेफर करते हैं. एंड FCP थोड़ा सा फास्ट भी होता है अकॉर्डिंग टू द Premiere. अच्छा. फास्ट फॉर द मशीन पर्पस, नॉट फॉर द लाइक सॉफ्टवेयर पर्पस. Okay. The performance wise, both of the software is good. Okay. So now I am using the Premiere Pro, and Premiere. I just write down the full name of the Premiere Pro. Adobe Premiere. Yes. Pro CC 2021 or 22, whatever version are you using. So Adobe is a company name, as you already know, right? Yes. They like in a market, a lot of software launched in a market as a multimedia and the VFX industry is a multinational company over there, right? And the Premiere is a software name which we are already working, and the Pro for the use for the professional. I'm just writing. Pro is for the professional one. CC is for the Creative Cloud. Right. Okay. What is the Creative Cloud? If you are using the iPhone or any other phone, so there is a cloud memory, right? So I'll just giving the example only. So जैसे मेरे पास iPhone है तो iPhone के अंदर क्या होता है, हर मंथ या हर 2 months पे एक अपडेट आता है, राइट? कि आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो कि आपके अंदर ये फीचर अपडेट हो जाएगा, राइट? तो ऐसे ही मैंने अपने प्रीमियर या फिर कोई भी एडोब के कोई भी सॉफ्टवेयर में मैंने एडोब के CC से क्रिएटिव क्लाउड से एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया. एडोब का ही वो क्रिएटिव सर्वर है जिसका नाम है क्रिएटिव क्लाउड. तो वहां से मैंने अपना प्रीमियर को डाउनलोड किया. अब इन फ्यूचर लाइक सॉफ्टवेयर में अपडेशन आते हैं कुछ ऑटोमेटिकली, एडोब विल अपडेट एनी अपडेट इन अ सॉफ्टवेयर. सो मेरे को ऐसा नहीं है कि बार बार उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा. मैं डायरेक्टली क्रिएटिव क्लाउड की हेल्प से उसको अपडेट कर सकता हूँ, राइट? जैसे मैं अपने फोन में अपडेट कर देता हूँ, डायरेक्टली अपडेट का बटन दबा के मैं डायरेक्टली अपने फोन को अपडेट कर देता हूँ. ऐसे ही क्रिएटिव क्लाउड को डायरेक्टली हम अपडेट कर सकते हैं. इट्स अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर. ओके. सो पहले क्या था, पहले क्लाउड बेस्ड नहीं होते थे. पहले आपने देखा होगा इन अ मार्केट लॉट ऑफ CDs निकलती थी, CD आ रही है, CD आ रही है, DVD आ रही है कि मेरी अपडेटेड CD आई है, इसकी अपडेटेड आई है. लेकिन आज सारा डेटा क्लाउड पे है. आप कोई भी चीज वो अपडेट करेंगे डायरेक्टली क्लाउड पे जाके सेव होगी, आप डायरेक्टली उसको अपडेट कर सकते हो. आपको इन अ मार्केट जाके कोई भी CD DVD परचेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर आप नेट से भी परचेस करते हो ऑनलाइन, मैं अमेजोन पे जाके अगर मैं कोई भी चीज परचेस कर रहा हूँ तो डायरेक्टली वो मुझे सॉफ्टवेयर का लिंक दे देंगे, आप यहाँ से डाकर डाउनलोड कर लो और इसमें सीरियल की डाल देना. तो मार्केट में कोई भी जाने की जरूरत नहीं है. इट्स अ क्लाउड बेस्ड मेमोरी,
right? So Right. that's the meaning of Creative Cloud. Next is 2021. It's a version which whatever version are you using. Like मैं 2021 यूज कर रहा हूँ, आप 2022 भी Okay. यूज कर सकते हो, 2020 भी यूज कर सकते हो. So like अब ये भी आप क्वेश्चन आ सकता है कि like मैं 2021 या 2018 या 2017 क्यों यूज करूँ अगर मार्केट में 22 आ गया है तो. सो लाइक ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक्स आर एवरीथिंग इज सेम. लाइक कभी भी कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च होता है तो बहुत रेयर होता है, जैसे अगर मैंने 17 भी यूज किया है, मैं 21 भी यूज कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस उसमें आ जाता है. समटाइम्स कुछ प्लगइन्स अपडेट हो जाते हैं, कुछ इफेक्ट्स और ऐड हो जाते हैं, तो इस टाइप की अपडेशंस आती हैं. कभी भी सॉफ्टवेयर का इंटरफेस और कीज चेंज नहीं होती. जो बेसिक्स टूल्स होते हैं जिनकी टूल्स हम एडिटिंग करते हैं विद दीज, एवरी टाइम इट विल बी सेम. Okay. राइट. सो वर्जन हमारे उस पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं डालते कि हम उस पर काम नहीं कर सकते. Okay. तो यहाँ तक हमारा फंडा क्लियर है. इट इज क्लियर राइट नाउ. Yes. राइट. अभी तक clear. नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द सॉफ्टवेयर. इज दिस विजिबल माई Okay. स्क्रीन? Yes. Adobe. So you can start the software with the help of start menu or whatever commands are you using. Like there's a multiple ways to start the Premiere. Okay. Right. So this is the first window of the Premiere. If you are just start the Premiere Pro, so you can see this. Okay. This is a menu bar. What is menu bar? If you are like working, if you are like working any other software, and if you want to search anything, like you just searching anything and you don't find anything, so you just go over there in menu bar and find everything over there, because it is a menu. You can each and every tool, each and every menu property, everything is over there in a menu bar. Okay. Okay, it is a menu. It's an example I'll give you. If you go for restaurant and you just sit it over there in a restaurant, and within 2 minutes will give a menu from the restaurant side. So in a menu, each and every detail mentioned in a menu bar, whatever the price, whatever the dishes over there, dishes like complimentary and everything is online and offline, everything is menu bar. So the same thing is there. Yes. Right. The same thing is the same scenario over there. If you like find, rate, find everything. Okay. Okay, this is the menu, and this is the first dialog box and the first home page over there. So you can see this. I'm just moving two menus, like new and the New old. project and old project. Right. New is for new. If you want to create a new project, so you just click the new button. If you already create a new project, and obviously if you are already created, so you have to save the project, and if you are saving the project, you want to open the project to open from there. Okay. This is a recent project which already I'm working. So initially I'm just clicking new project, and you can see the next window. Right. So this is the panel, the name, whatever you want to save. Like I'm saving the demo. The location, where do you want to save? I save the desktop. This is the basic fundamental basic settings are there. So if you're using a good machine, so there is a two graphic cards. Okay. You can see this, like the Nvidia, and there's a second one is general graphic card. If you have a system and there is no graphic card, if once you just purchase a system, there is a no graphic card, so it is now it is showing the Mercury Playback Engine software only. Okay. So if you have obviously I have a graphic card, that's why two things are there. GPU I'm using acceleration. this. Right. Next one is a video, and there is a display time code. Right. Video. So sorry. This is video rendering playback is basically the place to save. No, it's for the once we are just basically the thing is I'm just completing the project. I'm just compiling whole project and everything. Once we just compiling everything in a single file, so there is a process over there. There is a machine process over there, and this process for the rendering. And in the while rendering, which processor should I use? Software is asking to me which processor should I use for the rendering. Okay. ओके, मैं कौन सा प्रोसेसर यूज करूं आपके इस फाइल को रेंडर आउट करने के लिए, तो वो ये पूछ रहा है. Okay. Okay. ठीक है. अच्छा आ गया. Cool. The next one is a video. In a video, like lot of options are there. Initially, like time code. What is a time code? One, if you have a watch, so you can just watch the time is 2:30, right? 2 is a hours, 30 is a minutes, and next is a second, and second one is a millisecond. Right. So this is a time code which we are working,
And if you want to just go for the frame part, you already know in a video we are working on a frame, not for the milliseconds part. हाँ सर, आप हिंदी में भी समझा सकते हैं आराम से, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, no issue. I'm just इसका using both of. डिफरेंस. ओके, तो बेसिकली हम दोनों उसमें काम कर लेंगे. तो जो हमारा टाइम कोड होता है लाइक आवर्स, मिनट, सेकंड एंड मिली सेकंड में वर्क करता है. सो फीट प्लस फ्रेम एंड फीट प्लस फ्रेम हमारे दो है इसमें. लाइक हम जैसे मैंने आपको बताया पहले हम उसमें रोल्स में काम करते थे, रोल्स पे. तो दैट टाइम वी आर यूजिंग रोल्स इन राइट 16 एंड 35. तो नाउ अभी हम उसमें काम नहीं करते, लेकिन समटाइम्स इस टाइप की चीजें हमारे पास अगेन आ जाती हैं, तो दैट टाइम हम इसका यूज कर सकते हैं. इफ यू आर यूजिंग ओनली द फ्रेम. अभी हमारे पास सिर्फ टाइम कोड आता है या टाइम कोड और फ्रेम दोनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं? टाइम कोड if like hours, minutes, seconds and frames, not for the milliseconds part, will describe in a class properly once we are just going start the classes. Okay. ठीक है. Now we are most of the time I'm using the time code only. So and if you are using a frame, तो a frame is using like 2D animation, 3D animation, VFX part. जब मैं इन चीजों में वर्क करता हूँ तब that time मैं frames को यूज करूंगा. Okay. Next is a audio sample. In audio sample, normal audio samples, hours, minutes, seconds and frames. Right. For the milliseconds, yeah, or for the milliseconds, only milliseconds are there for in audio. Okay. The capturing, two things are there, DV and SDV. So as you already know, we are working on digital videos. So yes, two things are there. So if you are using a digital video, so you can select digital video, otherwise a high definition video. So both of the things are there, right? So default is SDV. ठीक है. HD. So this is the basic settings, right? I'm just going to okay. These settings are the additional settings we'll tell you in the class. Okay. Right now I'm just going to click OK, and automatically the interface is visible of the Premiere Pro. You can see this. User interface. Right. So this is the project panel. We can whichever you want to just import the footage. Like जो भी footage आपके पास है, footage in the sense like images, like videos, like text, like any kind of thing you want to. Achha, anything can be put into it. Okay. Right. You just import. How can we import? Double click. Directly you just select and import. Right. So you can see that this is a tool panel and this is a timeline panel over there. Okay. This is a tool panel. This is our timeline panel, and right hand side this is a sequence panel. See what is a sequence panel? Sir, I just wanted to ask this one thing. कितने बजे तक चलेगा ये डेमो? 40 minutes का रहता है, like more 10 minutes. 10 more minutes का. ठीक है sir. Okay, thank you. So this is a timeline. यहाँ पे हम timeline में editing करते हैं. Means जो भी हम edit करेंगे, manipulate करेंगे अपनी footages को. नीचे में timeline. ठीक है. Right. And right hand side is the final window. Like जो भी हम बनाएंगे उसका final output. Program. Right. हमें यहाँ दिखाई देगा. जो भी हम बनाएंगे उसका final output हमें यहाँ दिखाई देगा. Right. Okay. So initially level, I am just opening one audio. You can see this, and if I am just working on sequence, so मेरे को पहले एक sequence create करना पड़ेगा. बिना sequence के मैं कोई भी edit नहीं कर सकता हूँ. तो sequence का बहुत बड़ा एक अपने आप में setting होता है, right? तो initially level पे I'm just press the button is Control N and automatically sequence setting is there. Multiple type है. Right click new sequence, so automatically sequence setting is there. So initially I'm using Control plus N, and the SPAL setting I'm using the sequence is a standard and widescreen, right? Okay. Two things are there. So this is a broadcast standards. ये हमारे broadcast standard है जिसके help से हम videos को pictures को देख पाते हैं. तो हर किसी का हर country का अपना अपना broadcast होता है, हर company का अपना एक फिक्स एस्पेक्ट रेशियो होता है, फिक्स साइज होता है, फ्रेम रेट होता है, एवरीथिंग इज फिक्स्ड एज पर दी कंट्री वाइज. सो इनिशियली लेवल पे आई एम जस्ट यूजिंग द PAL एंड create a sequence. Automatically timeline is highlighted and screen is highlighted. It's totally black, right? Okay. Now I am importing Amit Umar one audio. Just click and drag in a timeline. You can see this. Normally click and drag. Okay. Press spacebar for the play. Press spacebar for the pause. Press. किसी का hello आया? Yeah. It's audio.
ओके सो ओके, क्या किया मैं समझा नहीं, एक बार फिर से करेंगे। प्रेस हमने स्पेस पहले बार ड्रैग किया। या प्रेस, इसको मैंने खाली नॉर्मली क्लिक किया, ड्रैग किया, और प्रेस स्पेस ठीक बार है, फॉर प्ले, कोलकाता प्रेस स्पेस बार फॉर पॉज, अगेन प्ले स्पेस पॉज के लिए स्पेस बार है। right, and for zoom plus zoom for the timeline zoom only, not for the footage zoom, is for timeline zoom. You can see this. For zoom out, zoom अच्छा minus. ओके Right, now I am just importing the footage as per the video audio. See this, हेलो आई एम कोलकाता listen. So इसने बोला ओके hello, I am Kolkata. हेलो आई एम कोलकाता So I'm just importing the images as per the audio. So I'm searching ओके the images from the Google. कोलकाता। First image is hello. So I'm just हेलो। hello हाँ and put an image. Right click, save image on my desktop, save it. Now I have to import this image हाँ from desktop. Right? हाँ। Now click and drag in the timeline. That's it. Click अच्छा and drag. टाइमलाइन में ही ड्रैग करना है, ठीक है। Right. In a video panel, I'm just import the video. In audio panel, import the audio. Now in a front, go front. हेलो Right. So see this. हाँ Hello आया. Now मेरे को यहीं तक ये footage चाहिए, तो I just want to crop this footage from this. So go over the last point and click and drag it. अच्छा क्लिक एंड छोटा कर दिया मैंने उसको, ठीक है, मैंने उसको छोटा कर दिया ताकि मैं उसको उतना ही रख सकूं. Now you can see this. हेलो आई एम Next है I am अच्छा तो Kolkata. हेलो के पार्ट में हेलो आएगा, Right. बाकी नहीं आएगा आगे। Right. Next I'm downloading I am. I'm just write down the I am. Click this one. Right click. Save this file on my desktop. Okay. I'm just importing again this footage. Again, just click and drag in my timeline. उसी के अंकुल जस्ट आगे एकदम। I am just still I am is there only. Okay. Next Okay. is one is Kolkata. I'm just again download the footage from Google, the Kolkata image. Right. Any pictures I just downloaded. Again save my desktop. Again just import this footage. हाँ Right. See this. कोलकाता हेलो वाला ऑडियो आई एम कोलकाता Right. So this is a very वहाँ basic. पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। हेलो आई एम कोलकाता Right. This is Okay. a very basic scenario for the editing. I am just placing the images according to the audio. ओके Right. So जैसे मैंने ऑडियो को वीडियो को इमेजेस को इंपोर्ट कराया, सेम एज इट इज मैं वीडियो को भी इंपोर्ट करा सकता हूँ. राइट. ऐसे ही मैं हाँ। मैनिपुलेशन कर सकता हूँ. क्लियर. सो दिस इज द बेसिक फंडा फॉर द वीडियो एडिटिंग. ओके तो हमने यहाँ पे ऑडियो को वीडियो या फिर इमेज के साथ तो एडजस्ट करना देख Right. लिया। राइट. तो ऐसे ही मैं इमेज के जरिए वीडियो को भी एडजस्ट कर सकता हूँ, वीडियो के जरिए इमेज को कर सकता हूँ, ऑडियो को मैनिपुलेट कर सकता हूँ. तो प्रीमियर प्रो इज अ वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर. राइट. तो इसके अंदर हम ऑडियो और वीडियो को मैनिपुलेट कर सकते हैं सर. क्रिएट नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते. अगर आप मुझे बोलो कि मेरे को ऑडियो जनरेट करनी है तो इट इज नॉट पॉसिबल. हमें सोर्स कहीं और से ही लेना पड़ेगा, ऑडियो Right. लेके कहीं और से लेना पड़ेगा, बस आपस में उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल. यहाँ पे भी वी आर जस्ट एडजस्टिंग द फुटेजेस. जो कैप्शंस होते हैं वो कैप्शंस कैसे आते हैं, लाइक बिल्कुल. अलग से, जैसे हमने ऑडियो की अलग लाइन ली, वीडियो की अलग लाइन ली, तो राइट. हमें कैप्शन की अलग लाइन लेनी पड़ती है या फिर हमें ऑडियो इमेजेस या वीडियो में ही जाके कुछ करना है? नहीं, हम कैप्शन के लिए यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम कैप्शंस आएगा हमारा ऑप्शन है. इसको हम ओपन टाइप बना के Okay. चलेंगे और यहाँ हमारा कैप्शन आ जाएगा. हाँ. आई एम जस्ट ओपनिंग द कैप्शन ओवर देयर. सी दिस, द कैप्शन इज विजिबल. नाउ आई हैव टू Okay. ओपन अ कैप्शन. यहाँ पे मेरे ऑप्शंस आते हैं कैप्शन. तो ये मेरा कैप्शन आ हाँ. गया. यहाँ पे मेरा आ रहा है हेलो, तो मैं हेलो लिखूंगा. अब हेलो की मेरे को सेटिंग्स हाँ. करनी पड़ेंगी थोड़ी सी. मैं इसका थोड़ा सा फुटेज छोटा कर लेता हूँ. हाँ सी दिस, मेरा हेलो यहाँ तक है, तो मैं हेलो इमेज के जितना हो जाएगा। हाँ हेलो यहाँ तक है. फिर मैं अगला वाला लूंगा, यहाँ लिखूंगा आई I am. एम. तो मेरा आई एम आ गया. अब वहाँ पे ऊपर ऐड कैसे करते हैं? सी दिस, ये रहा मेरा ऐड का बटन. अच्छा ये ऐड का बटन है, ठीक है। ओके कोलकाता. तो ये वाला जो फाइल होता है हमारा कैप्शन का, हम इसको सेपरेटली भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि मेरा ये जो फाइल है इसको मैं सेपरेटली एक्सपोर्ट करूँ, क्योंकि यूट्यूब के अंदर हमारा एक ऑप्शन होता है कैप्शन ऑन ऑफ करने का. हाँ हाँ
उसके लिए इस फाइल को हम एडिशनल एक्सपोर्ट करते हैं। फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट जो हमारा होता है एडिशनल एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे जाएंगे फाइल मीडिया, हाँ राइट, और यहाँ पे हमारा कैप्शन का अलग से एक फोल्डर होता है, हम उसको कैप्शन को अलग से क्रिएट करते हैं। अच्छा, तो अगर हम जैसे जब भी YouTube पे अपलोड करने जाते हैं तो हमारे को वीडियो तो मतलब वीडियो और कैप्शन अलग अलग अपलोड करने का मौका मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अगर मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, अभी मैं यूट्यूब पे गया, सपोज मैं दिखाता हूँ आपको, मैं कोई भी पुरानी वीडियो उठा लेता हूँ, मैं सपोज मेरी हर टाइप की वीडियोस यहाँ रहती हैं, तो मैं यहाँ पे मेरा कैप्शन अपलोड करने का मेरा अलग से ऑप्शन होता है, मैं दिखा देता अच्छा, हूँ। सब टाइटल अलग है, एंड स्क्रीन अलग है, कार्ड रिकॉर्डिंग, मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ ये रहा सब टाइटल, और यहाँ से आप इंपोर्ट करा सकते हो अपना अपलोड फाइल, और यहाँ से विद ट्रिमिंग विदाउट ट्रिमिंग कंटिन्यू, आपकी फाइल कौन सी SRT फाइल आपकी इंपोर्ट होती है इसमें, ठीक है, और वो हाँ। SRT फाइल आपकी यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखो ये SRT, ओके। तो इस तरह से यहाँ आप पे कैप्शंस को अलग से डाउनलोड कर लो, एक्सपोर्ट कर लो SRT में, फिर उसके बाद वहाँ पे जब वीडियो अपलोड करने जाओ YouTube में तो वीडियो अलग अपलोड कर लो और कैप्शंस अलग से। बिल्कुल, वो आपकी चॉइस है कि आप अलग अलग करना चाहते हो, एक साथ करना चाहते हो, ये भी आपके ऊपर होता है। अगर आप, मैं चाहता हूँ कैप्शन नहीं करना मुझे, फैसिलिटी देता है वो बेसिकली। हाँ वो दोनों फैसिलिटी, आपको कैप्शन करना है तो आपको कैप्शन सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको नहीं करना तो हटा दो। और हमें जो जो वीडियो आ रहा है उसके अंदर में कैप्शंस की पोजीशनिंग कैसे डालेंगे हम? ये सेटिंग्स होती है हमारी सर यहाँ पे सारी। मैं कहता हूँ मेरे को मेरा जो कैप्शन है ये राइट हैंड साइड पे दिखाई दे, ठीक है, ये राइट हैंड साइड पे आएगा, देखिए कॉर्नर पे राइट आ रहा है, Okay. टॉप पे राइट आ रहा है, मैं पूरी सेटिंग इसमें कर सकता हूँ। अच्छा, तो हम उसको, अच्छा वहाँ पे मैनुअली भी है अमाउंट जो नंबर आ रहे हैं? बिल्कुल, आप मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो यार। अच्छा ठीक है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे पूरी, ठीक है, एक्स और वाई हमारे यहाँ मैनुअल आते हैं, उसको परसेंटेज में अलग अलग मूव दे सकते हो। ठीक एक रेशो होता है, उस रेशो से नीचे नहीं जाएगा, ये इस रेशो से नीचे नहीं जाएगा कैप्शन हमारा, इससे नीचे लेके जाना है तो आप इसको इफेक्ट कंट्रोल की हेल्प से मैनुअली कर सकते हो सीधे। ओके ठीक है, सो देयर इज अ मल्टीपल फीचर्स, यू कैन एडजस्ट योर टेक्स्ट एज पर योर अकॉर्डिंग। ओके, सेम हम इमेज के साथ भी कर सकते हैं? सेम ऑफ इमेज, मेरे को इमेज को छोटा करना है, बड़ा करना है, आई कैन जस्ट मूव इट। अच्छा, एक ही बार में 2 इमेज भी डल सकती है? आप 50 डाल सकते हो, 99 डाल सकते हो, वन इन सिंगल टाइम, इसी को कॉपी Okay. करके डाल लो। तो मतलब सेम ही जैसे आई एम के टाइम में हम आई एम लेफ्ट में भी आ सकता है अलग तरीके से, और आई एम राइट में भी आ सकता है? बिल्कुल, आप वो चॉइस टोटली आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे दिखाना चाहते हो। ओके ठीक है, ऑफ कोर्स, मेरे जैसे जैसे ये चीज सीख रहा हूँ मेरे तो क्वेश्चंस और क्या बोलता है ना, नई नई चीजें दिमाग में आ रही है, जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिशन वगैरह और ये सब चीज। बिल्कुल, तो ऐसे ऐसे हमारे बेसिकली फंडे क्लियर होने चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है जिस वजह से आप मेरे पास वीडियो एडिटिंग सीखने आओगे, जब तक आपका वही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर फिक्स सीखने का भी कोई फायदा नहीं है। ये बात तो सही है। मैंने मैम को भी, जब मोनिका मैम से बात हुई थी, मैंने 2 चीज बोली थी। एक तो ये कि मेरा जो पर्पस है, जैसे मेरे को वीडियो डालनी है तो उसके लिए मेरे को बेसिक पहले कुछ रॉ वीडियोस होनी चाहिए, तो क्या ना मैं उन पे प्रैक्टिस करके मैं मेरा हाथ सेट कर लूं कि मैंने जो पहले वीडियो कंटेंट विल प्रोवाइड अ रॉ फुटेजेस, डोंट वरी, हाँ विल प्रोवाइड रॉ फुटेजेस फ्रॉम आवर साइड। नहीं, वो तो ठीक है, ऑफ कोर्स कोर्स के पार्ट के लिए तो रॉ फुटेज मिलेगी, बट द थिंग इज कि जैसे मेरे को जिस चीज में उसको यूज करना है तो वो भी मेरे पास अगर पहले से रेडी हो तो मैं बेटर लर्न कर पाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज था। राइट, दूसरा मैं ये चीज बोला था कि थोड़े बहुत बेसिक्स में कहीं से अगर मान लीजिए जैसे जैसे मैंने वेबसाइट की वो वर्डप्रेस वगैरह का भी सीखा था, करा था, तो उसमें क्या था कि पहले मैंने उसमें किया था फ्री वाला वर्जन, तो अब मेरे को वेबसाइट डिजाइनिंग सीखनी है, तो मेरे को अब मैं सीखने जाऊंगा ना तो मेरे को बेटर और इजी रहेगा सीखने में, थोड़ा बेटर सीख पाऊंगा, थोड़े बेटर क्वेश्चंस पुट अप कर पाऊंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा सीख पाऊंगा। राइट, तो यहाँ के लिए भी मैं यही सोचा हूँ। नो प्रॉब्लम। अभी और कोई आपके डाउट्स हैं इसमें, कुछ और ऐसा क्वेश्चन जो आपका क्लियर नहीं इसमें हुआ? तो मेरे को बस यही कि ट्रांजिशन वाला कैसे करेंगे, बट वो आप अभी पता है तो अभी, नहीं तो नेक्स्ट। बिल्कुल, ट्रांजेक्शंस आपकी इफेक्ट एंड इसमें आती हैं, इफेक्ट्स आपके ये हो रहे, आप ट्रांजेक्शंस आपके एरिया, वीडियो ट्रांजेक्शंस आपके अलग होते हैं, ऑडियो ट्रांजेक्शंस आपके अलग होते हैं। आपको जैसे जैसे करना है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। देखिए बेसिक ट्रांजेक्शंस भी हैं और डिफरेंट भी हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम यूज कर रहा हूँ अभी, लाइक वाइप में यूज करता हूँ, तो 2 लेयर्स के बीच में यहाँ पे ट्रांजेक्शन यूज हो गया। आपको छोटा बड़ा करना है, आपको छोटा बड़ा इसको आप एडजस्ट कर सकते हो सीधे से। ओके, तो ट्रांजिशन अलग से बीच में आ जाता है? ट्रांजेक्शन जो यूज होता है बिटवीन द 2 क्लिप्स, मतलब दोनों क्लिप के बीच में यूज होता है, यानी हमारे एक कट पे क्रिएट होता है। ठीक है, नो इट्स अ कट, मतलब जो वीडियो का कट होगा हमारा, जहाँ पे हम स्प्लिट करेंगे अपनी वीडियो को, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे कट है,
आपको दिखाई हाँ, दे रहा है यहाँ पे एक कट। वीडियो और एक इमेज के बीच में, या फिर एक वीडियो और दूसरी वीडियो, या राइट, एक इमेज तो और दूसरी इमेज के बीच में। राइट जहाँ पे हमारा कट होगा हम वहां पर ही सिर्फ वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं ट्रांजिशंस। लेकिन जो इफेक्ट होता है अच्छा, वो इफेक्ट अप्लाई होता है हमारी पूरी फुटेज के ऊपर, मींस इसके ऊपर, अच्छा, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है और इसका कोई इससे कोई रिलेशन नहीं है, वो अप्लाई होता है हमारे अच्छा, फुटेज के ऊपर। लाइक अच्छा, मैं यहाँ पे गया वीडियो इफेक्ट्स में, मैं अगर ब्लर यूज हाँ, कर रहा हूँ सपोज, मैं कोई भी यहाँ पे हाँ, ब्लर, क्वेश्चन ब्लर में सपोज अप्लाई किया, तो इट्स अप्लाई ऑन हाँ, ओनली दिस। उसका आगे वाली फुटेज से और पीछे वाली फुटेज से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ इस पे ही अप्लाई होगा जो होगा। ओके, ठीक है, इसको बड़ा करना है, खूब ब्लर करना है, आप इतना मर्जी ब्लर कीजिए, वो आपकी चॉइस है। हाँ, ओके, ठीक है, ठीक है सर। हाँ, एनी अदर डाउट? नहीं सर, अभी तौर पे डाउट नहीं एनी है। एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वीडियो एडिटिंग? और इससे ज्यादा तो सर एक चीज, हम्म, मेरे को इससे कंटेक्स्ट में मेरे को पता नहीं वो बेसिकली इस कंटेक्स्ट में है कि नहीं है, दूसरी कंटेक्स्ट में है। बोलिए। बेसिकली मैं जैसे मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, मैं उसमें हम्म, आम नागरिक स्टोरीज के अंदर में, तो अभी फिलहाल फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था कि मेरे ही फोन में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है डुअल वीडियो का, एक आता है नॉर्मल वीडियो का। हम्म, एक डुअल वीडियो में क्या होता है, मेरा फ्रंट और बैक कैमरा दोनों एक साथ ऑन हो जाता है, तो मेरे सामने बैठे बैठेगा, मैं इंटरव्यू ले सकता हूँ। हम्म, उसमें माइक में मेरा MI 11X Pro है, तो उसमें 3 माइक है, तो आगे वाले की वीडियो आगे वाले माइक से ग्रैब होती है ऑडियो, पीछे वाले की वीडियो जब लेता है तो ठीक पीछे है, वाला माइक उसको ऑडियो ग्रैब करता है। तो ठीक वो है, तो एट द सेम टाइम मैंने चला लिया। हम्म, अब अगर मान लीजिए क्योंकि मैंने एक वीडियो ले चुका हूँ, अब उसमें मैंने जब लिया ना, तो मेरा थोड़ा बहुत मेरी क्योंकि जो वीडियो है सेम वीडियो है, वो एक ही वीडियो के अंदर में मेरा जो पोर्शन है, क्योंकि उसी एक वीडियो में दोनों आ रहा है, फ्रंट भी आ रहा है, बैक भी आ रहा है, मेरा वाला पोर्शन मेरे को अगर एडिट करना है तो सेम वीडियो में वो कैसे कर पाऊंगा, कुछ आइडिया? सर उसको बोलते हैं मल्टी कैमरा एडिटिंग। हाँ, आपके पास फ्रंट की वीडियो अलग रिकॉर्डेड है, बैक की वीडियो अलग रिकॉर्डेड है, नहीं, राइट? तो फ्रंट और आपको बैक दोनों एक ही में रिकॉर्डेड है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने क्रॉप करके दोनों को अलग अलग कर लिया, आप अलग अलग कर लीजिए उसको, फिर मल्टी कैमरा एडिटिंग के थ्रू हम उसको एक सिंगल अपने अकॉर्डिंग उसको एडिट कर सकते हैं। तो ठीक इसमें है, क्रॉपिंग कैसे होती है वीडियो की, अगर मैं करना चाहूँ तो? बिल्कुल हो जाएगी सर। ये रहा हमारा एक क्रॉप नाम का इफेक्ट है, आप उसके जरिए भी इसको क्रॉप कर सकते हो। ट्राई, ये रहा, इफेक्ट में ना? ये रहा क्रॉप। इसके जरिए आप वीडियो को क्रॉप कर लो, लेफ्ट से क्रॉप करना है, इतना क्रॉप कर लियो। हाँ, मतलब लेफ्ट राइट ही है वो वैसे उसमें। हाँ वो लेफ्ट राइट ही होता है उसमें, मैं समझ गया आपका जो वीडियो है। हाँ, ठीक है, उसके जरिए आप उसको स्प्लिट कर लेंगे, फिर आप आधा वीडियो आधा जैसे अभी लगाना है स्क्रीन पे, आप उसको यूज कर अब सकते वो दोनों अलग अलग फाइल हो गई ना, तो दोनों को अपने इंडिपेंडेंटली ऐड हो। कर राइट। सकते हैं। लेकिन सर एक चीज और भी है। हम्म, अब अच्छा, ऑडियो भी तो उसमें वही है ना, जैसे मान लीजिए देखिए सर ऑडियो तो आपकी साथ सिमिलर होगी ना। आप सिंपल चीज सोचिए, जब भी आपने बात करी है, इंटरव्यू लिया, तो ऑडियो तो दोनों का सेम रहेगा। ऑडियो से मेरे को कोई काम नहीं करना, मेरे को वर्क करना पड़ेगा वीडियो पे, क्योंकि ऑडियो आपने जो क्वेश्चन पुटअप किया उसने उसका आंसर किया, हाँ, इट्स अ इंटरव्यू। तो उसमें तो ऑडियो पे तो कुछ काम ही नहीं करना आपको। ऑडियो में तो सिर्फ आपको रिड्यूस नॉइज, बैकग्राउंड म्यूजिक, इस टाइप की चीजें ऐड करनी है, दैट्स इट। तो वो यहाँ पे ऑडियो की एडिटिंग कैसे होती है, उस तरह का कुछ? ऑडियो की एडिटिंग के लिए यहाँ पे ऑडियो के ट्रांजिशन और इफेक्ट्स हमारे हैं। ओके, ठीक है सर। राइट, हाँ सर, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तो नहीं हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके सर, वेलकम, थैंक यू। थैंक यू। मैं वीडियो लीव कर लूँ ना कॉल? या यू कैन। थैंक यू। थैंक यू।